Hi friends, hope you're doing well. I'm Dr. Milin. So in this interview series, we till now we have heard a lot of inspirational stories. So today we are going to hear one more inspirational story of Dr. Payal Agarwal, who is from Durg. So let's try to hear a story of a medical aspirant who came from a very peripheral college, but who dreamed very high, and who not only dreamed but worked hard on those dreams and scored incredible rank of 1860 in NEET PG and rank 700 in INICT. So hi Payal, I welcome you in this interview. Please Hello, boss. give First, your give your first introduction. of all, thank you for giving me this opportunity. Hi, myself, Dr. Payal Agrawal. I have done my MBBS from CCMC Durg, which is a very peripheral private medical college, which was now it's government. There is a huge story behind it. And I started my PG journey during my second year with DAMS and did dams in my third year also. Then from fourth year I did Marrow and continued with Marrow only. Okay, so let's try to break down your journey and let's try to know the different parts of your journey. People have a lot of doubts, especially people who come from a very small college, or the peripheral colleges basically, who don't have much idea about the competition, about the resources, what to do. So let's try to decode how did you, study during your period. So you said that in your initial period of your MBBS, TAMS was your source. Did you read any textbooks? A lot of students ask about, is it Yeah. like about, reading your textbooks. So what is your opinion on that? I read my textbook during my first year, Okay. and in second year also I read Robbins. Mhm. But for pharma, I was not that much. I read only DAMS notes only. Okay. Anant Narayan I read for microbiology, and for FMT I read Arvind Arora, that MCQ book theory, and Okay. actually that's handwritten means notes form of Reddy only. So Okay. that helped me during my PG preparation also. ओके तो आपने मतलब टेक्स्ट बुक्स के साथ आपका लाइक कोचिंग नोट्स आल्सो यू हैव टेकन हेल्प ऑफ सो दैट इज व्हाट यू हैव डन लाइक Yeah, from second year on. ठीक है Yes, sir. एंड आफ्टर दैट यू स्टिक टू मैरो उसके बाद आपका जो सोर्स था दैट वाज मैरो एंड डिड यू वॉच लाइक हाउ डिड यू प्लान वाचिंग योर वीडियोस ड्यूरिंग योर अंडर ग्रेजुएशन हाउ डिड यू डिवाइड योर डे लाइक ड्यूरिंग अंडर ग्रेजुएशन डेज ये वीडियो कब देखना है थियरी कब रीड करनी है मीन्स कॉलेज के बाद जो भी हो मतलब अगर पोस्टिंग है तो पोस्टिंग वाला जो भी सब्जेक्ट चल रहा है उसका देख लेते थे या तो मान लो कोई टेस्ट है तो उसका देख लेते थे ऐसा करके ओके एंड I tried to did patho and micro in during my final year only, so that it will be like in touch. I will be in touch with the second year subject because they are high scoring in PG also. Okay. Yes, so that's a very important point that these are always a high scoring subject. जो आपका first and second prof के subjects है, they are always high scoring. So you should always have good command on them. What about internship? Like how did you plan your study during internship period? So internship was not so hectic, and luckily I got the hectic subject very early during internship. So all my hectic internship ended very early. So I was little free during the end, and plus I had the I have my internship ended in November. So from December I was free. So I prepared really well during that time. Okay, and how was your schedule like? जब आप प्रिपेयर कर रहे थे जैसे लाइक हाउ डिड यू डिवाइड योर डे कि कब थियरी पढ़ना है अगर वीडियोस देखने हैं तो कैसे देखने हैं रिवीजन कैसे करनी है एमसीक्यूज कैसे सॉल्व करने हैं हाउ डिड यू प्लान एवरीथिंग सर फर्स्ट मैंने फर्स्ट रीडिंग सिस्टम वाइज की थी आई रियली वांट से फर्स्ट रीडिंग सिस्टम वाइज करने से बहुत हेल्प होती है ऑलमोस्ट लाइक थोड़े टाइम में 40% ऑफ द कोर्स इजीली कवर हो जाता है और आप बहुत अच्छे से लिंक कर पाते हो और टोटल जो याद करने का है मटेरियल वो भी बहुत कंसाइज हो जाता है तो मैंने फर्स्ट रीडिंग सिस्टम वाइज की थी और फिर जो भी बचा था वो उसके बाद कर लिया था जो भी शॉर्ट सब्जेक्ट और वो है फिर उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आफ्टर फर्स्ट रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप सेकंड रीडिंग से पहले आपको पता चल जाता है कि कौन से एरिया से पूछे जा रहा है तो आप
आप उस पे ज्यादा फोकस कर सकते हो। एंड रेगुलर जीटी मैं 20 डेज में, पहले तो 1 मंथ में देती थी, फिर 20 डेज, फिर उसको कम करते गई, ताकि जितना आप जीटी दोगे आपको आपको वीक एरिया पता चलेगा और आपको इम्प्रूव करने के लिए मिलेगा। Yes. So just to summarize what Payal said, कि whenever you start preparing, like for example आपने सबसे पहले से what I tell students also, if you want to understand, आपको अगर टॉपिक को समझना है तो आप इंटीग्रेटेड लर्निंग करो, जैसे आपने सिस्टम वाइज किया, तो उससे ना अगर आप या लाइक इफ यू वांट टू डू अ इंटीग्रेटेड लर्निंग, डू इट इन अ फर्स्ट रीडिंग इटसेल्फ, कि आप जब पहली बार कर रहे हो ना, पहली बार रीड कर रहे हो, तो आप सब्जेक्ट को कंबाइन करो, सिस्टम वाइज करो, इट विल टेक टाइम बट यू विल अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट. After that, when you do the first second revision, you can go subject wise, because now you have understood, but you have to do it faster, हाँ so you can go to subject wise. Also she mentioned about the PYQs, previously asked questions. तो आप जब फर्स्ट रीडिंग करते हो उसके बाद आप PYQs करते हो, तो आपको पता चलता है कि क्या पूछा जा रहा है, कहाँ से पूछा जा रहा है, कैसे पूछा जा रहा है, तो आप अपने सेकंड रिवीजन में आप उस पर ध्यान देते हो. थर्ड चीज अगेन शी सेड अबाउट GTs. यू नो लॉट ऑफ स्टूडेंट्स पायल हैव दिस ऑब्सेशन कि वो शुरू से ही हर 10 दिन में GT देना स्टार्ट कर देते हैं. बट जैसे पायल ने बोला कि इनिशियली शी गेव इट लाइक मंथली एंड देन शी इंक्रीज्ड, जैसे उनका पढ़ना स्टार्ट हो गया, शी या इंक्रीज द नंबर ऑफ GTs टू नो द वीक एरियाज. तो आई थिंक these are the very important fundamentals of your preparation, and आपको उसको you have to implement that in your study pattern. So what was your approach to the QBank and custom modules and other things? You know, a lot of students are confused about that कि QBank कैसे करे, इतने सारे questions कैसे करे. सर आई डिड क्यू बैंक फ्रॉम मैरो ओनली। तो मैरो क्यू बैंक फाइनल ईयर में चालू किया था, तो फाइनल ईयर सब्जेक्ट पहले वो कर लिया, और पैथो माइक्रो जैसे मैंने बोला तो मैंने वो कर लिया था। बाकी जो बचा वो फिर मैंने ड्यूरिंग इंटर्नशिप किया था थोड़ा, लेकिन उससे भी ज्यादा आप एक कस्टम मॉड्यूल बाद में करो, क्योंकि वो थोड़ा टफ होता है। कहीं ना कहीं आपको आप अपने हिसाब से कर सकते हो, लेकिन वो थोड़ा टफ होता है। एंड उससे बेटर है जीटी देना, टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि वो ज्यादा अच्छा रहता है आपकी प्रिपरेशन जज करने के लिए। And I think yeah, it's very good point, Payal. You know about you said, you know, lot of students, you know, Marrow QBank के बारे में हम बहुत सुनते हैं, बहुत बातें होती है. But what is important is आपने फाइनल ईयर में स्टार्ट किया है, so if you want to solve Marrow QBank, you should start it early. You cannot be like एग्जाम के लिए 5 महीने बचे और आप सोच रहे हो कि मैं अब QBank भी कर लूं. So that is not possible. So you have to plan your studies well. You have to see how much time you have. तो आप टाइम के हिसाब से उसको प्लान करो. What was like एक क्वेश्चन एक बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछते हैं ना, डिड यू डाउट योरसेल्फ, यू नो, आपके दिमाग में आता था कि मेरा सिलेक्शन होगा नहीं होगा, मैं क्या करूंगी? सिलेक्शन होगा नहीं होगा वो मैंने मतलब बहुत, अब मैं प्राइवेट से थी तो मेरे को ऐसा कुछ नहीं था कि मेरे को एकदम अचीव करना है, वो आ गई रैंक वो अलग है, लेकिन ऐसा नहीं था। और कहीं ना कहीं मेरे भाई का भी बहुत वो है, वो भी मेडिकल से ही है, ही इज इन फाइनल ईयर राइट नाउ, तो ही ऑलवेज सपोर्टेड मी। जब भी आई वाज लाइक नहीं होगा होगा, ही वाज लाइक कर, जितना हो रहा है कर, अभी तो कर, देखेंगे जब होगा एग्जाम, उसके बाद रिजल्ट के बाद देखेंगे। एंड ऑल्सो माई पेरेंट्स ऑल्सो, माई फादर रियली सपोर्टेड मी, प्लस सम ऑफ माई फ्रेंड्स दे वर लाइक नहीं तू कर लेगी, हमें पता है तू कर लेगी, तेरे को नहीं पता लेकिन हमें पता है। तो ऐसा है, काफी सपोर्ट मिला। और बी इन टच विथ नाइस पीपल हु मोटिवेट, नॉट डिमोटिवेट और डाउट यू, बिकॉज वो जर्नी है, कब सबको ये फेज आएगा, चाहे वो टॉपर हो चाहे वो कोई भी हो, ये फेज सबके में आता है कि आप डाउट करोगे, होगा नहीं होगा कुछ भी है, लेकिन आप प्रिपरेशन पे बिलीव करो और अच्छे से मतलब प्रिपेयर करो। Yes, that's a very nicely put, पायल. लोगों को ये मतलब दिस इज अ वेरी गुड मैसेज दैट शी हैज गिवन. आप पॉजिटिव रहो प्रिपरेशन में, आप अपने एफर्ट्स दो. देखो रिजल्ट का सोचते रहोगे ना, कल क्या होगा ये हमें नहीं पता. मैं स्टूडेंट्स को एग्जांपल देता हूँ ना, हम सेविंग बैंक्स में पैसे डालते हैं ना सेविंग्स के लिए कि हमारे बुढ़ापे में काम आए, पीएफ में डालते कि हमारे 30 साल बाद 15 साल बाद काम आए. हमें नहीं पता ना आफ्टर 15 years what will happen, but we will keep doing that because that is experience. Now I share my experience with people. We have Payal's inspirational journey with us, जो हमें बताते हैं कि आप मेहनत करो हो जाएगा. एंड दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि आपको बिलीव करना है कि आप करोगे चीजें तो हो जाएगा. माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अगर जब आप मैरो का कर रहे थे, क्यूबैंक एंड मैरो वाज योर सोर्स, आप
आपने और कुछ भी किया था? जैसे बहुत सारे बुक्स आते हैं, बहुत सारे टेस्ट एंड डिस्कस, बहुत सारी चीजें आती है मार्केट में, लाइक, और डिड यू स्टिक टू ओनली नहीं वन नहीं, थिंग? मैंने सिर्फ, नो, आई स्टिक टू ओनली मैरो क्यू बैंक एंड मैरो जीटी। ओके, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट मैंने है कि वीडियोस देखे हैं, मतलब वीडियोस बाकी सोर्सेस से थोड़े बहुत देखे होंगे, जो मतलब जो मेरे को सिंपल लगता है, जहाँ पे सिंपल वे में लगता है मैं वो देख yes, लेती हूँ, ऐसा वाला है। लेकिन लेकिन मैंने क्यू बैंक और जीटी मैरो से ही दिया है। okay. So that's a very good. मैरो जीटी का एक है, मैरो जीटी में बहुत ज्यादा नंबर ऑफ स्टूडेंट देते हैं, तो उसमें आपको एक्चुअल आपकी पोजीशन पता चल जाती है कि आप कहाँ पे लाई करते हो। और आपके स्कोर कैसे होते हैं? लाइक व्हाट वर योर स्कोर्स इन जीटी, लाइक मतलब कितने क्वेश्चंस आपके, व्हाट वाज द मैक्सिमम नंबर ऑफ आज करेक्ट यू गॉट, लाइक रफली? मैक्सिमम नंबर ऑफ करेक्ट आई गॉट 167 और 168, ओके, एंड समथिंग लाइक दैट, व्हाट इन वाज द नीट रेंज? मॉक, लास्ट नीट मॉक। और वो भी रेंज कैसा था आपका? लाइक रेंज कैसा था, सर लाइक मोस्ट वो ऑफ द भी नीट, ऐसा हो गया था। लाइक व्हाट वाज योर रेंज इन मोस्ट ऑफ द नीट? सर सबसे मोस्ट ऑफ दी 150 के अराउंड ही था, 156 157 ऐसा ही था, और फाइनल में भी वही आया, 156 ही करेक्ट हुए। पहले फर्स्ट जीटी में आई गॉट 75 करेक्ट, एंड वहां से फिर धीरे धीरे करके लास्ट में आई वाज लाइक 169, एंड वो भी ऐसा है कि क्योंकि मैं बहुत जीटी दे चुकी थी, तो ऑलमोस्ट नंबर ऑफ क्वेश्चन रिपीट थे, तो मुझे पता भी रहता था कि हाँ ये इसका आंसर हो सकता है, ऐसा वाला भी था। लेकिन एग्जाम में एक्चुअल में न्यू क्वेश्चन आए थे। yes, and that is also the problem of giving lot of GTs from the same source। और आप अगर फिर से और क्यू बैंक भी आप करते हो ना, तो आपकी जीटी में रैंक अच्छी आती है, क्योंकि वही क्वेश्चन शफल होके आ हाँ, जाते हैं। सो दैट इज आल्सो समथिंग दैट वी सेम शुड हैव, रिपीट होता yes, है। you should have in our mind। लाइक, एंड व्हाट वाज योर स्कोर इन नीट पीजी? कितने क्वेश्चंस आपके सही आए थे एग्जाम में, रियल एग्जाम में? 156 So, करेक्ट। so that is where you, मतलब that is what I tell the student, you get 1800 rank at 156 correct, and that should be your target। कभी भी 200 क्वेश्चन आपको सही नहीं करने हैं। लोग ना 200 क्वेश्चन के लिए पढ़ते हैं। You have to study for these 150 160 question, and you will be in the top 2000। So Payal, what is the message that you want to give to all the listeners, the aspirants who are preparing for this exam? Just do little smart study. Don't count hours, because I studied for like 5 to 6 hours daily, but consistently, like every day. And when I used to don't feel like I don't want to study now, I used to give GTs or solve custom modules. So you can do that if any day you don't want to study like that. And have faith in yourself. Stick to some good peoples. And that's it. All the best. Yes. Thank you so much, Payal, and many, many congratulations again on your wonderful achievement. And I'm sure this story and all the tips are going to inspire and help a lot of students. So thanks for joining us. Thank you so much, sir.